So welcome back, friend. And today we are going to complete the entire industrial relations, labor laws, and social security in India. And we are going to touch upon the very important points in this topic. And we will ensure that the entire important topic within this main topic, that is the industrial relation, labor laws, and the social security, with respect to the employees working in industries or factories, will get covered. So recently we have heard that there was multiple number of laws relating to these industrial relations and social security as well as the labor laws, and all those laws has been codified into four different codes, and that we will see. But the highlights would be that these codes are yet to be implemented. So, despite that, we go on those codes. We will also cover the individual laws pertaining to each topic. So, starting with the different labor laws, we have seen that the labor laws were basically is categorized into four major codes, and these codes subsumed the pre-existing the different we'll say the different laws that were pertaining to industrial relations, social security, and security. The first code that is the industrial relation laws in the industrial relation, that is the code for industrial relation, and it subsumed the three act, that is Industrial Dispute Act 1947, Trade Union Act 1926, and Industrial Employment Standing Order Act of 1946. We have already covered this 1947 Act of Industrial Dispute and Trade Union Act of 1926. We are yet to complete with the Industrial Employment Standing Orders Act of 1946. Then the second one is the laws on wages and remuneration, and this has the combinations of four act: Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, and Equal Remuneration Act of 1976. Then we have the laws on working condition, which includes Factories Act, Shop and Establishment Act, and Contract Labor's Registration and Abolitions Act of 1970. Then we have the laws of Social Security, and in this we have the EPF and Miscellaneous Provisions Act of 1952, Employees State Insurance Act of 1948, Maternity Benefit Act of 1961, and Payment of Gratuity Act of 1972. And the last law is the Law on the Welfare and Equality, and it includes three basic acts: Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986, Bonded Labor System Abolition Act of 1977, and Sexual Harassment and Workmen at Workplace Act of 2013. See, laws on the social security is important as it is in the topic, that is the social security, and labor laws is also important. In this regard, we are going to complete this laws on welfare and equality, laws on social security, and laws on welfare and equality. We will be dealing with sexual harassment of women at workplace, and then we have laws and working condition, laws on wages and remuneration, and laws of industrial relation that we are going to complete in this video. We will touch the important points, so be with me. And I've already said that we have completed the like the Trade Union Act and the Industrial Dispute Act in the previous video, so you can check out that. So, coming to the Industrial Relation Code of 2020, you see that it was enacted by the Parliament in 23rd December 2020, but and the President has also given the assent. On the same in the same month and year, but still it is to be implemented. Why? The reason being that the rules are finalized by the center and the state government. We have already seen that each courts are basically consuming the or basically a combination of different laws, and in each laws when we'll go through it, we will see that the each law state that the respective government will decide what would be the amount of penalty, and what would be the condition of that, what would be the minimum amount for of eligibility of worker under that act. And so there is a disparity among different state government, and each state government has decided its own benchmark, and therefore to codify all these different laws into a one centralized code, you have to reach to a mutual agreement among all the state, and that is a difficult task, and there that is why we are seeing that it is yet to be implemented. Okay, so for the Industrial Relation Code of 2020, we see that it is the merger of three major central acts, that is the Trade Union Act, the Industrial Employment Standing Order Act, and the Industrial Dispute Act.
So, Trade Union Act we have already done. So let us quickly go through it and we will see what are the important points on it. See, for the registration of the trade union, we have seen that there are minimum 7 members required to form a trade union, and at least 10% or 100 workmen, whichever is less, must be the member of the organization for which the trade union is registered. Okay, must have the constitution with objectives, fund usage, and subscription rule. And this all has to be submitted to whom? The registrar of the trade union. Okay, and registrar will be appointed by the respective government. If the trade union is associated with the central PSUs and the central industries, so the central government will appoint. Otherwise, the state government will appoint. So for the recognition of the trade union, we have when we were suing the Trade Union Act, we have seen that it only provide for the registration of the trade union, not for the recognition. And we have seen there that recognition is covered under what? Relation codes. And here in we have the recognition of the trade union, where there is only one union which is called as the negotiating union. And if there exists a multiple union, then if there is only one union, it will be the negotiating union. If there is a multiple union, so the union with 51% of the membership will be recognized as a negotiating union. Means if there are multiple unions, say ABC, so the union which is like there are 200 members, so it is having, say, suppose 102 member, and the remaining members are being distributed as 50 and 48. So the union A will be recognized as the negotiating union, and it will be consulted by the administration for various decision. It will be called in dispute to resolve, and not BNC, because this union has the majority membership, so it will be called as the negotiating union. Now if it has none of the union is having 51%, so a negotiating council is found. Now in this case, suppose if it is having 60 and this is having let's suppose 90, and this is having 50 members, so none of the member crosses 51% membership mark. So a council will be formed, and the negotiating council, each representation from each of the union will be given, and the council will be formed, and then instead of the negotiating union there would be a negotiating council with representative from union having greater than 20% of membership. So this is also important for negotiating council. How much percentage of membership is required from each union? That is greater than 20%. Okay. So rights and liabilities we have already covered in the previous video, so we are not going to do that. Industrial Dispute Act was pending, so we will be seeing that in brief. Very important points on that. So see, for the before we go proceed to the in this video, let us understand that wherever there is an industrial dispute, the industrial dispute could be categorized into three broad category. We say that industrial conflict can be categorized into three broad categories. Number one could be which is legal, which is allowed by the Industrial Dispute Act, and number two, which status is unknown, we can cover it on other category, and number three, which is termed as illegal under the act. So the legal, what you can do is you can do the strike. Before you have to going on the strike, you should have to intimate the administration that we are going on the strike, and that category of a strike is legal. Now see, whenever there is an industrial dispute, this industrial conflict is like, this is the way to express out your emotions and to express out your demand, and that is why we have the different method. So strike means you are not going to work, and that is called as the strike. So who will do this? This is being done by the worker. The worker will call out the strike that we are not going to work from tomorrow. We are on strike. No production will be carried out. Then we have the like if you can do the strike, what could the employer can do? The employer can do the lockout. लॉकआउट मीन्स दे विल टेम्पररी शट डाउन द प्रोडक्शन. ठीक है भाई, अगर हमें जरूरत है और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हम भी काम नहीं देंगे. दैट्स कॉल्ड द लॉकआउट. सो अगर जो वर्कर्स हैं, दे आर लाइक दे आर रेजिंग द रॉन्ग डिमांड्स एंड द टाइम इज नॉट इन द फेवर ऑफ देम, so employer or the industrial administration can also call for a lockout, and this means that temporary closure of work. क्लोजर ऑफ वर्क, आपको काम से निकाला नहीं गया है, बस काम बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए. ठीक है, और जितने दिन काम बंद कर दिया जाएगा, उस दिन क्या है, आपको कुछ वेजेस मिलेंगे लेकिन पूरी सैलरी नहीं मिलेगी. ठीक है.
या ऐसा भी लॉकआउट हम तब भी करते हैं जब मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं है, हमारे पास मार्केट में डिमांड नहीं है, तब भी एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, लॉकआउट कर सकता है। ठीक है, सो लॉकआउट इज अ टूल यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर। The next we have, after the lockout, we will say that the picketing and demonstration. Picketing कहते हैं ना, non-violent या demonstration. This is also a legal technique and it is also will be done by the worker. And ये condition is that it should be non-violent. कोई तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। स्लोगन रेज कर सकते हैं आप बैठ के या खड़े होकर के एनी ऑफिस के बाहर। That is legal. Then we have these two techniques are used by the worker. Then we have, after the picketing, we have retrenchment. Or before that, let's go for the layoff. Layoff का मतलब होता है कि आपने किसी को टेम्परेरली जॉब से निकाल दिया है कि भाई आप 2 महीने काम पे मत आना। जनरली कहाँ पर होता है, जो जहाँ पर जो प्रोडक्शंस जो है वो सीजनल होते हैं, जहाँ पर जो नेचर ऑफ जॉब इज डिपेंडिंग ऑन द सीजन। इन दैट केस की ऑफ सीजन में कि भाई अभी मार्केट नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव द डिमांड, सो आप 2 महीने के लिए आप जॉब पे मत आओ, अगले 2 महीने के बाद आना, दैट इज कॉल्ड द ले ऑफ। ठीक है। देन वी हैव द रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि परमानेंटली आपको जॉब से निकाल दिया गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिट्रेंचमेंट, दैट इज ऑल्सो लीगल। देन अनदर टेक्निक इज क्लोजर। द फाइनल वन इज द क्लोजर। भाई कंपनी ही बंद कर दी हमने, तो जितने भी एम्प्लॉय थे भाई सब घर जाओ, है ना, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा पिछले 3 सालों में, आप लोगों की सैलरी की डिमांड देते देते मैं घाटे में चला गया हूँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ। सो picketing and demonstration and strike, these are the two legal ways for industrial conflict that is allowed in the Industrial Dispute Act. And for the employer, we have the lockout, layoff, retrenchment, and closure. This four technique which is allowed by the employer, allowed to the employer for the industrial conflict under the Industrial Dispute Act. So, what are illegals? See, the illegals thing is like, that is like, you can say, those type of strike in which you are not officially on strike, neither you are doing work. Means you are present in the office but you are not doing the work. So officially you are on work, unofficially you are on strike, so that type of techniques will be considered under illegal. So go slow strike, that is number one technique is go slow. Go slow means you are coming to the office earlier in one day, you are you are like producing like 100 units of a 100 units of some product, and then when you are in go slow strike, that reduced to 10 unit or 20 unit. So instead of giving your full potential for the production, you have reduced your potential. That is called the go slow strike, and this is an illegal type of strike. Then sit down strike. Sit down strike means I come to the office, sit down strike. I'll come to the office, I mark my attendance that I am available for work. So my salary would not be deducted, but I am not doing work. So that is the illegal form of strike. I am coming to this office, but I'm not doing any work. Go slow means I'm doing the work, but the pace of doing work is slow. Sit down strike, I'm coming to the office, I'm not doing any work. That is called the sit down strike. Wildcat strike. Another is wildcat strike. Wildcat strike means suddenly we call for a strike. There is no intimation to the administration that these are our demand, and if you do not look into it, we will go on a strike. There is no approval from the central body, central union body, and you are gone to the strike suddenly. That is called the wildcat strike, and that is also illegal. If you are going to the strike without any intimation, prior intimation to the administration, that is considered as an illegal strike. Then we have the ghirao. Ghirao means Ghirao means a group of people from the union and its member going to the administration office, making a circle around the office, pressurizing them to sign some document or to pass some order. That is called the ghirao. ऑफिस को घेर लेना, नारे लगाना, उन पे प्रेशर बनाना कि आप कोई ऑर्डर पास करो या कोई डॉक्यूमेंट को साइन कर दो, है ना, दैट इज ऑल्सो इलीगल। घेराव नहीं करना। Demonstration picketing outside the office campus, you are raising slogans against the administration, that is legal, but ghirao is illegal. The last one is the sympathetic strike, or we can call it as sympathy strike. Sympathy strike means strike that you are carrying out which is not directly related to your organization. But so, for example, the bank people are calling a strike. The railway people have also called a strike, and there is no demand, unmet demand for the employees of the railway. But they are saying that we are organizing a strike in sympathy to the
strike of the or the workers of the bank. So that sympathy strike is also illegal. Those two categories under the other strikes are work to rule. Work to rule. Like this is neither legal nor illegal. Work to rule means you are not on the strike. You are also not reducing the pace of work. You are doing the work, but you are sticking strictly to the rule. So it is obvious that if you stick strictly to the rule, that means the pace of work will always go down. That means कि हर काम आप बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग ही करोगे कि नहीं। रूल के अंदर बोला गया है कि 15 दिन के अंदर मुझे ये फाइल प्रोसेस करना है, तो आज तो 13 दिन हुआ है, मैं और 2 दिन में नहीं करूंगा, जैसे ही 15 दिन आएगा मैं फाइल प्रोसेस करूंगा। पहले आप सेम डे कर देते थे, लेकिन आप बोले भाई रूल है 15 दिन के अंदर ही करना है, तो अभी मेरे पास 13 दिन है। सो दैट टाइप ऑफ स्ट्राइक इज लाइक इट इज नाइदर इलीगल नॉन लीगल, बट you should know the term that is this is known as the work to rule. Then that is called as the token strike. Token strike means जस्ट एक स्ट्राइक है। आप स्मॉल लाइक शॉर्ट प्रोटेस्ट है। बिल्कुल फुल फ्लेज स्ट्राइक नहीं किए, एक छोटा सा स्ट्राइक किया 1 घंटे का या 10 मिनट का या 15 मिनट का, कि भाई हम स्ट्राइक पर है ना। आपने जो भी अपना डिमांड है वो रेज किया है, फिर आप वर्क पे वापस आ गए, दैट इज कॉल्ड द टोकन स्ट्राइक। सो ये दो कैटेगरी ऑफ स्ट्राइक, वर्क टू रूल एंड टोकन स्ट्राइक, इनका जो है स्टेटस नाइदर लीगल नॉर लीगल, but you know should know the term that what does that actually mean. And then what we have considered, what covered the illegal and the legal strike. Then what are the conflict resolution? Conflict resolution, if there would be a strike, then management will call you कि भाई क्या है बताओ, what is the problem. Then there would be the resolution of the conflict, and there could be like we have the bi-party, we have the voluntary arbitration, and we have the tri-party. In bi-party, what we have like bi-party means the workers and the employees. So they will form the committee. So there could be a work committee, there could be a work committee, and for work committee you will have the minimum 100 employees. Minimum 100 employees will be there for the work committee. Then we will have what we have as the grievance redressal committee. Grievance redressal committee जो individual dispute को solve करेंगे. And in tri-party we have like conciliation officer that we have already seen, board of conciliation, court of inquiry, labor court, industrial tribunal, national industrial tribunal, and national tribunal. All this thing we have already covered in the previous video. So now let us go one by one, and we will see what are there in the industrial relation codes. So standing order, see, standing order, chapter 3, chapter 2 is on trade union. In the industrial relation code we have chapter 2 for the trade union, and we have chapter 3 for the standing order, and then we have the industrial conflict, industrial relation in chapter 4. So standing order we will see that establishment with 300 or more worker, we will cover this more holistically, and when we cover the industrial establishment act or the standing order act separately. So we will leave this, we will go to the industrial dispute one. So there is we have seen that there is the for the resolution of the conflict there is a work committee, and for establishment which is more than 100 worker there should be a work committee, and this is a bi-party agreement arrangement, so there will be employer and workman representative, and aim is to promote good relations to resolve day-to-day grievances. Then there should be a grievance redressal committee, and with that the establishment with greater than 20 workers. So remember, for work committee the threshold is 100 worker, and for grievance redressal committee the threshold is 20 workers. ठीक है। और इंडिविजुअल यहाँ पर तो वर्क कमेटी के अंदर क्या है कि आपका कलेक्टिव डिस्प्यूट जो है उनका हैंडल होगा। ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी इसलिए होता है कि आप इंडिविजुअली भी आप अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सके, ठीक है। अब देखो दोनों ही जो भी बाई पार्टी एग्रीमेंट है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर और इक्वल नंबर ऑफ वर्कमैन का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब काम करने वाले भी इक्वल नंबर में होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के भी इक्वल नंबर ऑफ लोग होंगे, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी में 1 वुमेन मेंबर मैंडेटरी होने चाहिए, ठीक है। और डिस्प्यूट अनरिजॉल्व अगर होगा तो कहाँ रिफर करेंगे, रिफर टू द कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर, then there would be like we have the court of inquiry, labor court, ये सब ट्राईपार्टी। जब बाई पार्टी से अरेंजमेंट से हम नहीं एग्री हो पा रहे तो हम कहाँ मूव करेंगे, ट्राईपार्टी अरेंजमेंट में। और ट्राईपार्टी अरेंजमेंट में वी हैव सीन देयर इज अ कंसिलिएशन ऑफिसर, देयर इज अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, देयर इज अ लेबर कोर्ट, देयर इज अ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, एंड देयर इज अ नेशनल ट्रिब्यूनल।
सो नोटिस एंड स्ट्राइक, नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट, स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो, 14 days नोटिस बिफोर द स्ट्राइक और लॉकआउट इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट, नॉट जस्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। कितने दिन का नोटिस है? 14 days। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्राइक करने से पहले कितने दिन पहले आपको नोटिस देना है? 14 days। स्ट्राइक लॉकआउट कैन नॉट अकर विद इन 60 days ऑफ नोटिस, ठीक है, ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन। तो तीन कंडीशंस है जहां पर आप स्ट्राइक को नहीं कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है? विद इन 60 days ऑफ नोटिस। दूसरा, ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग चल रहा है, थर्ड पार्टी को आपने रिफर कर दिया है, वहां पर बात चल रही है, तो आप उस मैटर को लेकर के दोबारा स्ट्राइक नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है? 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन। अभी अभी मुद्दा सॉल्व हुआ है, फिर से आपने स्ट्राइक कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। कब? 7 days। तो दिन याद रखना है आपको। नोटिस बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक से पहले कितने दिन पहले नोटिस देना है? 14 days नोटिस। विद इन 60 days ऑफ द नोटिस आपको स्ट्राइक नहीं करना है। नोटिस आप दे दिए, उसके बाद आपको 60 days का वेट करना है। विद इन 60 days ऑफ नोटिस आपको कोई स्ट्राइक नहीं करना है। ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कोई स्ट्राइक नहीं होगा, और 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन कोई स्ट्राइक नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक, विदाउट नोटिस अगर आप कर दिए, ये सारी कंडीशन को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, तो आप क्या, कौन सा स्ट्राइक कंसिडर हो जाएगा? दैट वुड बी इलीगल। यानी कि विदाउट नोटिस, ड्यूरिंग कंसिलेशन ऑफ ट्रिब्यूनल और प्रोसीडिंग, और इन कंट्रावेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर आ गया है, उसके कंट्रावेंशन में आप इंडस्ट्री में स्ट्राइक कर रहे हो, नहीं, आप वहां पार्लियामेंट में जाकर के शोर शराबा करो, इंडस्ट्री के बाहर स्ट्राइक करो, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे हो, तो इंडस्ट्री में स्ट्राइक करना एक इनअप्रोप्रिएट प्लेस है, वहां स्ट्राइक नहीं कर सकते, दैट वुड बी इलीगल। ले ऑफ रिट्रेंचमेंट, इलीगल स्ट्राइक के लिए फाइन देख लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन अप टू ₹10,000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month। एंड इलीगल लॉकआउट के लिए 50,000 है। इलीगल लॉकआउट हो गया तो 50,000 का है पेनाल्टी, और इलीगल स्ट्राइक पे कितना है? 10,000 का पेनाल्टी। इसको सेपरेटली लिख लो, ऐसे बहुत सारे पेनाल्टीज आगे आने वाले हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको सेपरेटली लिख लो भाई कि पेनाल्टी कहां पर कितना है, इन in terms of the amount that you have to give, or the imprisonment that you have to face, 1 month imprisonment for illegal strike। ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर के बीच का डिफरेंस, ऑलरेडी वी हैव सेड दैट द ले ऑफ इज टेम्पररी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड वर्क ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पावर फेलियर एटसेट्रा। ले ऑफ आप जब करते हैं तो कंपनसेशन देना पड़ता है आपको, कितना? 50% ऑफ द बेसिक वेज प्लस डीए, ठीक है, बेसिक वेजेस प्लस डीए। रिट्रेंचमेंट मतलब आप क्लोज कर रहे हो, परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ द फॉर रीजन अदर देन मिसकंडक्ट, मतलब कि अब आप पेमेंट नहीं कर पाओगे रेगुलरली, आपके पास काम नहीं है, तो एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, वर्कर की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप उसको जॉब से निकाल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि सरप्लस हमारे पास स्टाफ है, तो उसको उस टाइम पे हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट हो रहा है। तो उस समय पे क्या करना पड़ता है कि आपको 1 महीना का नोटिस और वेज देना होगा, यानी कि आप बता दोगे कि आगे महीने आपको मैं सैलरी दे करके रिट्रेंच कर दूंगा। 1 महीना एडवांस में आपने बता दिया कि ये महीना लास्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद जितना साल आपने सर्व किया है, 15 days पर कंप्लीटेड ईयर का आपको पेमेंट देना पड़ेगा, यानी कि 15 days पर कंप्लीटेड ईयर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल काम किया है ना, तो 15 into 4 कर लो, यानी कि 60, यानी कि 2 मंथ की सैलरी एडिशनल देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल काम किए हो, तो 10 into 15, 150, यानी कि 5 मंथ्स की सैलरी, ये आपको रिट्रेंच करने के टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर के लिए क्या है? 16 days नोटिस टू द गवर्नमेंट देना पड़ेगा, और कंपनसेशन तो सेम रहेगा जो रिट्रेंचमेंट। तो ये बात याद रखना कि जब आप ले ऑफ कर रहे हो, या रिट्रेंचमेंट कर रहे हो, या क्लोजर कर रहे हो, तो ले ऑफ में आपको कितना देना पड़ेगा? आप उसको ले ऑफ कर रहे हो तो हटा तो नहीं रहे हो परमानेंटली, सो आपको हर महीने 50% ऑफ बेसिक, यानी कि आधी बेसिक प्लस डीए का जो 50% बनता है वो आपको देना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट में आप 1 महीना पहले नोटिस, और 15 days पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी देनी पड़ेगी। क्लोजर में आपको 2 महीने के पहले नोटिस देना होगा, और क्लोजर कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा कि भैया ये हम फर्म क्लोज कर रहे हैं, और कितने दिन पहले? 2 महीने पहले। और बाकी एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन देना है वो सेम जो लिटरेचर में हम कहते थे कि हर साल पे 15 दिन की सैलरी देनी होगी, ठीक है। उसके बाद एक रीस्किलिंग फंड बनेगा, जहां पर आप अगर ले ऑफ कर रहे हो या रिट्रेंच कर रहे हो, तो रिट्रेंच वर्कर को ऑब्वियसली बात है कि आप इसलिए निकाल रहे हो कि या तो वो सरप्लस है या उसके पास स्किल नहीं है। तो अगर आप इसलिए निकाल रहे हो कि उसके पास स्किल नहीं है, तो आप एक फंड बनाओगे, उस फंड में जो पैसे होंगे वो यूटिलाइज आप करेंगे किस लिए? इनको रिट्रेंच्ड वर्कर के स्किलिंग के लिए, ठीक है।
फंडेड बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ 15 days वेजेस पर रिट्रेस्ड वर्कर, उसमें आप जो फंड बनाओगे उसमें डालोगे, और अमाउंट पे डायरेक्टली टू द वर्कर फॉर ट्रेनिंग और रीस्किलिंग विद इन 45 days। ठीक है, विद इन 45 days उस जो वर्कर को आपने रिट्रेस्ड किया है, तो रीस्किलिंग फंड आपने बनाया है, और रीस्किलिंग फंड में आप कितने पैसे डालोगे? 15 days वेजेस पर रिट्रेस्ड वर्कर। ठीक है, यानी कि अगर 10 वर्कर को आपने रिट्रेंच किया है, तो 10 वर्कर का 15 डेज की जो सैलरी होती है, वो आप वेज को डालोगे रिस्किलिंग फंड में। अब इस फंड में जो पैसे जमा हुए उस फंड का आपको क्या करना है? उस फंड के अमाउंट को आप डायरेक्टली यूज करोगे वर्कर की रिट्रेनिंग और रिस्किलिंग के लिए। या तो आप उसको वो पैसे दे दो, या आप उसके रिस्किलिंग में वो यूज कर लो। ठीक है, और वो कितने दिन के अंदर आपको करना है? विद इन 45 days। सो दीज डेज आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, दीज नंबर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी देखो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में मैंने बोला बाई पार्टी और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अरेंजमेंट होता है। बाई पार्टी के अंदर हमने देख लिया कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होता है और वर्क कमेटी। वर्क कमेटी के लिए हमने बताया कि 100 वर्कमैन से ज्यादा है तो आपको वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी, और रिड्रेसल कमीशन कमेटी के लिए आपको 20 मेंबर से ज्यादा है तो आपके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए। ट्राई पार्टी और अरेंजमेंट में हमारे पास कंसिलेशन ऑफिसर होता है। जब आपका कोई भी ग्रीवेंस जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी से सॉल्व नहीं होता है, तो वो आप कहाँ देते हो? कंसिलेशन ऑफिसर के पास देते हैं। तो डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज को कंसिलेशन ऑफिसर, जो कि त्रिपाठी अरेंजमेंट है, वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर स्टेट लेवल पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हमारा आता है नेशनल लेवल, जहां पर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर रेफर किया जाता है। इसके साथ साथ आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में हमारे पास जो है प्रॉपर्टी जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमिटी होता है। ठीक है, वो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हटा दिया गया है। देन एक लेबर कोर्ट होता है, लेबर कोड होता है, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर हटा दिया गया है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर इन दोनों को हटा दिया गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और लेबर कोड। और डायरेक्टली आप कंसिलिएशन ऑफिसर के बाद कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और उसके बाद है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और ये दोनों आपका जो है डिस्प्यूट एट स्टेट लेवल पे देखेगा, और ये है मल्टीपल स्टेट्स के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, तो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल उसको देखेगा। कंसिलिएशन के लिए टाइम लिमिट 45 डेज के लिए है, और ट्रिब्यूनल का अवार्ड 1 साल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कंसिलिएशन के लिए टाइम लिमिट कितना है? 45 डेज। 45 डेज के अंदर जो है वो कंसिलिएशन कंसिलिएटिंग ऑफिसर जो है कंसिलेट करवा देगा, और ट्रिब्यूनल का अवार्ड जो है कोर्ट के अंदर जब अगर चले गए, ट्रिब्यूनल के अंदर अगर चले गए, तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी अवार्ड आना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टीज के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है कि 50,000 है फॉर इलीगल लॉकआउट, 15,000, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 50,000। इम्प्रिजनमेंट कब है? 1 मंथ के लिए। इलीगल स्ट्राइक के लिए वही चीज आपकी 10,000 हो जाती है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के लिए 1 लाख हो जाता है। ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवार्ड के लिए 2 लाख हो जाता है, और रिपीटेड ऑफेंस के लिए 5 लाख, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स। तो ये टर्म याद कर लेना आप, कि अगर आप लॉकआउट कर रहे हो इलीगल, 50,000, इलीगल स्ट्राइक कर रहे हो तो 10,000, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के लिए 1 लाख, ब्रीच ऑफ सेटलमेंट यानी कि एक बार सेटलमेंट हो गया, बताया गया कि एम्प्लॉय ये एग्री कर रहा है और वर्कर ये एम्प्लॉय या एडमिनिस्ट्रेशन ये एग्री कर रहा है, और बाद में आप ब्रीच कर लेते हैं उस एग्रीमेंट को, तो 2 लाख का फाइन देना पड़ेगा। और रिपीट ऑफेंस हो रहा है तो 5 लाख का फाइन और 3 महीने की सजा, इन दोनों में से कोई एक। अब देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और जो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है, जो पहले थे और अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेशन कोड के अंदर बदल दिए गए, वो ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो एक्ट था, यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर जो हम पढ़ेंगे कि भाई वर्कर का जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज डिफाइंड होना चाहिए, कंप्लीटली डिफाइंड होना चाहिए। वो पहले थे ओल्ड में 100 वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर वो 300 वर्कर्स हो गए। ठीक है, रिट्रेचमेंट और क्लोजर के लिए गवर्नमेंट से प्राइवेट अप्रूवल जो लेना होता है, वो पहले 100 वर्कर्स थे, वो अभी 300 वर्कर्स हो गया। ठीक है, वर्क कमेटी के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया कि पुराने में भी 100 वर्कर थे, नए में भी 100 वर्कर है। ग्रीवेंस कमेटी पहले तो कंपलसरी नहीं था बनाने के लिए, लेकिन अभी कंपलसरी हो गया। कहाँ? जहां पर 20 वर्कर से ज्यादा हो, ऐसे संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जहां पर 20 वर्कर से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले और अभी के इसमें थोड़ा सा चेंजेस है जो आपको याद रखने हैं। फिर अगर हम देखेंगे अर्लियर एक्ट से पहले, जो हमारे पास नंबर ऑफ एक्ट्स थे, 3 सेपरेट थे। ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और द स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, उसको यूनिफाइड कर दिया सिंगल कोड के अंदर।
ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन के लिए कोई रूल नहीं था अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, लेकिन यहाँ पर 51% का रूल लगाया है और 20% का रूल लगाया है इन द केस ऑफ नेगोशिएटिंग काउंसिल। स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए 100 वर्कर्स थे, अभी 300 वर्कर्स कर दिया है। रिट्रेंचमेंट अप्रूवल के लिए अभी 100 वर्कर्स थे, अभी 300 वर्कर्स कर दिया है। स्ट्राइक को हमने बताया कि 14 डेज प्रायर नोटिस देना मैंडेटरी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, लेकिन पहले सिंप्लीफाइड इसलिए क्या थे, पहले आप लेबर कोर्ट जाते थे, पहले फैक्ट ऑफ इंक्वायरी में जाता था, इंक्वायरी कोर्ट होता था, वहां पर फैक्ट्स इंक्वायर किया जाता था, फिर लेबर कोर्ट आते थे, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होता था, फिर नेशनल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बाद में आता था, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके अब क्या कर दिया गया है, पहले स्टेज में आपको कंसिलिएशन ऑफिसर है, वो 45 डेज के अंदर आपको रिजोल्यूशन करके देगा। और उसके बाद अगर डिस्प्यूट जो स्टेट लेवल पे है तो आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाइए या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाइए, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया गया। और टाइम लिमिट्स के साथ भी है, ठीक है। साथ ही साथ डिजिटल कंप्लायंस और रीस्केलिंग फंड। रीस्केलिंग फंड जो है पहले नहीं था, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर नहीं प्रोवाइडेड था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर री स्केलिंग फंड बताया गया है, और इसमें कितना बताया गया है, 15 डेज वेजेस पर वर्कर का। तो इसमें आपको पैसे डालना होगा, और 45 डेज के अंदर, रिट्रेंच करने के 45 डेज के अंदर आपको उसको रिस्केल करने के लिए जो अमाउंट है वो देना होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। और अब हम चलते हैं, हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ट्रेड यूनियन पहले कंप्लीट कर लिया है, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर मेनली जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड है, लेकिन इसको हॉलिस्टिकली हम पढ़ेंगे कहाँ पर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर। तो ये वाला पार्ट हमने किया है कंप्लीट, और इस एक्ट का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को करेंगे अभी शुरू। लेकिन एक छोटी सी बात ये कि ये एक्ट अभी जब जब तक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अभी इन्फोर्स मतलब नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिस जहां जहां, तो वहां पर अभी क्या है, 100 एम्प्लॉयमेंट का लिमिट है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में वो क्या कर दिया गया, 300 कर दिया गया। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एक्ट, दैट इज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। और 1946 डेट याद रख लेना है, ईयर याद रख लेना है इन केस, क्योंकि लास्ट ईयर क्या, इस बार से हम देख रहे हैं कि पीसीएस एंड यूपीएससी इवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देता है कि कौन सा पहले कौन सा बाद में आया, उसको मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन ऑर्डर पूछ देता है, तो उस हिसाब से एक बार हो सकता है कि याद रखना, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बट ईयर यार मतलब ईयर याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। 1946, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, देखो अब यहाँ से जो मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं, और वही आपको बताऊंगा, और दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। उतने से ज्यादा आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चार्ट बना लेना, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स हम पढ़ेंगे और हर के अंदर मतलब कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, खास करके पेनाल्टीज और नंबर ऑफ वर्कमैन जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सबको लेकर थोड़ा थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा क्राइटेरिया किस एक्ट के अंदर था। तो एक चार्ट बना लोगे तो इजीली रिवाइज हो जाएगा, फिर वो आपके माइंड मैप की तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है वो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर को डिफाइन करने के लिए इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप कितने देर काम करेंगे, ठीक है, आपकी सैलरी में से कितना पैसा डिडक्ट किया जाएगा, अनलॉफुल डिडक्शन नहीं होगा, है ना, सब जो कुछ भी चीजें आर्बिट्री नहीं होगी, सब कुछ डिफाइंड होगा। आप सुबह काम करोगे, शिफ्ट में काम करोगे, कितने घंटे काम करोगे, उस घंटे से ज्यादा काम करोगे तो आपको ओवर टाइम कितना मिलेगा, हर चीज जो है वो, सब कुछ जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो डिफाइन होगी। अब वो सारे चीज मतलब सोशल सिक्योरिटी से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, वेजेस को लेकर के, सब कुछ को डिफाइन किया गया है, लेकिन उन सब चीजों को अलग अलग लॉस के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर क्या डिफाइन किया गया, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर मतलब ये है कि सर्विस कंडीशन को कॉडिफाई कर दिया जाएगा कि भाई आपका यही काम है, इतने घंटे काम है, सुबह काम है, शाम को काम है, शिफ्ट में काम है, कैसा काम है, वो सारा कुछ डिफाइन किया जाएगा, ताकि बाद में कोई आर्बिट्ररी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और आर्बिट्री एक्शन ना हो, इस चीज के लिए ही ये एक्ट लाया गया है। तो अभी बता दो, मैंने ऑलरेडी बताया कि 100 और मोर वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर 100 या 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां पर इस एक्ट का इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी है ना। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर इसको बढ़ा करके 300 किया गया है, लेकिन ये अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है बहुत सारे स्टेट्स में, इसलिए जहां पर जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 अगर आ गया तो वहां पर क्या याद रखना है आपको, 100 वर्कर रन करना है।
Appropriate government can extend into the establishment with fewer workers by notification. अब कोई गवर्नमेंट है, मान लो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो जहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जहां पर 50 वर्कर है मेजरली, तो वहां पर मैं 50 वर्कर में ही इसको चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट हो, तो वो अपने स्टेट में लागू करने के लिए इसको नोटिफिकेशन डाल करके 100 को 50 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यही जो लाइंस लिखी गई है ना, इसी लाइंस की वजह से जो आईआर कोड है वो हर जगह इंप्लीमेंट करने में मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने अलग अलग नंबर्स डाल रखे हैं और वहां पर इस लॉ को इन्फोर्स किया गया है। अब वो 300 वाला जो बैरियर है जो आईआर कोड में है, उसके वजह से बहुत सारी कंपनीज जो बाहर हो जाएंगी, तो उस वजह से इम्प्लीमेंटेशन में अभी थोड़ा इश्यूज है। तो अभी देख लो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंदर 100 है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं। कहाँ का एप्लीकेबल है? फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, रेलवेज और अदर एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट। तो जनरली हर भी कोई भी इंडस्ट्रीज हो जनरली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इस कैटेगरी को नहीं भी याद रखोगे, बस ये नंबर याद रखोगे, दैट इज सफिशिएंट। अब देखो ये जो अभी हम जितने भी एक्ट पढ़ेंगे ना, उन सबको आप क्या कर सकते हो, सबका जो आप मतलब इन केस कोई एक्ट का इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, जैसे कोई लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं होता है, तो आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो पुलिस स्टेशन कि भाई ये ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर कुछ भी ब्रीच होता है, कुछ भी लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, उसके लिए लेबर कमिश्नर होता है, ठीक है। तो आप लेबर कमिश्नर ही सब कुछ डील करता है, तो लेबर कमिश्नर एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। वो सारे कुछ जा करके लेबर कमिश्नर को बताते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये वेजेस नहीं मिले हैं, दिस दैट। तो वो सारा कुछ हैंडल कहाँ से होता है? द ऑफिस ऑफ लेबर कमिश्नर, ठीक है। अब देखो, मैटर्स टू बी कवर्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, कौन कौन सा मैटर इस एक्ट के अंदर आप कवर करोगे, तो बहुत ही आसान है याद रखने के लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, कि वो परमानेंट वर्कर है, टेम्पररी वर्कर है, अप्रेंटिस पे है, प्रोबेशनरी है, कैसा है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कितना आवर्स ऑफ वर्क करेगा, हॉलीडेज कितनी मिलेगी, पेडेज कितना मिलेगा, वेजेस रेट क्या होंगे, मतलब बेसिक क्या होगा, वो सब आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द वर्कर का क्लासिफिकेशन। आवर, हॉलीडेज, पेडेज, ये सब डिफाइन करना होगा। शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस, लेट कमिंग एंड एब्सेंस, condition of leave, requirement for entry and exit, rule for maintenance of discipline and misconduct, termination of employment, suspension of dismissal of misconduct, means of redressal and any other prescribed manner। any other prescribed manner भूल भी जाओ तो ये 10 आपको याद रखने होंगे, ठीक है। हर मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड हर चीज इसमें कवर्ड है। शिफ्ट वर्किंग है, अटेंडेंस आप आ रहे हैं तो लेट आ रहे हैं या एब्सेंस है, वो कैसा आप कैसे कवर करोगे, किस क्या लेट, कितने घंटे लेट को आप डिफाइन कर रहे हो कि वो एब्सेंट माना जाएगा, कितना घंटा तक आप लेट मान सकते हो, ठीक है। छुट्टी की क्या कंडीशन होगी, एंट्री एग्जिट का क्या कंडीशन होगा, ठीक है। पंच करना है, पंच आउट करना है, चेकिंग होगी, क्या होगा, नहीं होगा। रूल्स ऑफ मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन छोड़ने पर आपका क्या होगा, सस्पेंशन होगा या डिसमिशन होगा, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या होगा। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर डिफाइन की गई। तो ये शेड्यूल ऑफ एक्ट को आप एक सिक्वेंशियल तरीके में याद कर सकते हो, बिल्कुल आसान है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं सबमिशन। क्या है देखो, जो स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब पहले तो ये है कि एक कंपनी आपने बनाई है ना, उसके अंदर आपने देखा कि भाई 100 वर्कर से ज्यादा हो गया, तो अब आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनानी पड़ेगी। आपने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया, बना करके आपने सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया लेबर कमिश्नर को, भाई ये मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये मैंने सबमिट कर दिया है आपको, देख लो मैंने सही सही सब कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए सब कुछ फेयर रखा है, ऐसा तो कुछ अनफेयर नहीं रखा है। तो वो जब आप कंपनी एलिजिबल हो जाती है, जब आपके पास 100 एम्प्लॉय या 300 एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो ड्राफ्ट बना करके सबमिट कर देना है, ठीक है, विद इन दिस 6 मंथ ऑफ एक्ट बिकमिंग एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। 6 महीना, जिस दिन से आप एलिजिबल हो जाते हो उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर का एक ड्राफ्ट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या है, एग्जामिन करेगा ड्राफ्ट को, नोटिस देगा ट्रेड यूनियन को कि आप आइए, फिर 1 to 1 बैठते हैं, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि ये सब जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया गया है, बताया गया है कि भाई आप 14 घंटे काम करेंगे, 14 आवर्स काम करेंगे, बताया गया है कि अगर आप 5 मिनट भी लेट होते हैं तो आपका फुल डे की सैलरी कटेगी, ठीक है। ट्रेड यूनियन वालों को बुलाया जाएगा। अगर ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली ग्रुप ऑफ वर्कमैन को बुलाया जाए कि आओ डिस्कस करेंगे उनसे। अब उनसे बात करने के बाद कुछ लगता है कि ये रीजनेबल है,
ठीक है, उस चीज को रखा जाएगा। जैसे अब ये है कि 5 मिनट डिले पे फुल डे की सैलरी कटेगा, अनरीजनेबल है, उसको हटाया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो फाइनलाइज करने के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर को अगर फाइनलाइज करने के बाद उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है दोनों को भेजा जाएगा, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज को, कि भाई अब ये नियम कानून बन गया है, आपको इसके हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, और स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफिकेशन के बाद 30 डेज के अंदर अंदर ऑपरेशन में आ जाता है। कमिंग टू ऑपरेशन 30 डेज आफ्टर बीइंग सर्टिफाइड। तो स्टैंडिंग ऑर्डर बना, सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर का आपने ड्राफ्ट बनाया, सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास भेजा। सर्टिफाइंग ऑफिसर ने आपके ट्रेड यूनियन या वर्कर्स को बुलाया, डिस्कशन किया। उसके बाद कुछ मॉडिफाई किया जो अनफेयर था, बाकी जो फेयर रीजनेबल था उसको आपने एग्री किया। उसके बाद एग्री करने के बाद आपने सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर दिया कि भाई ये स्टैंडिंग ऑर्डर अब इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑपरेशन में आ जाता है। 30 दिन का टाइमिंग क्यों दिया गया है? क्योंकि 30 दिन तक भी आप चाहें तो उसको आप अपील कर सकते हैं कि भाई ये क्लॉजेस जो है ये सही नहीं है। तो आप अपील कर सकते हैं टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन कब करना है? आप कुछ 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 मॉडिफिकेशन भी करना होगा। फॉर सपोज कि जिस वक्त स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया गया उस वक्त सारे टर्म्स एंड कंडीशन फेवरेबल थे, लेकिन बाद में फेवरेबल नहीं थे या बाद में कुछ क्लॉज छूट गए, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन दैट वुड बी ओनली आफ्टर 6 मंथ ऑफ सर्टिफिकेशन। 6 महीने के बाद ही मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फिर वो मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जाएगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करके वो जब पास हो जाएगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, फिर से 6 महीना वेट करना पड़ेगा कुछ मॉडिफाई करने के लिए। The same procedure for certification applies to the modification as well. ओके, तो देखो यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है आप लोगों को ये याद रखने के लिए कि भाई ये शेड्यूल कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए बिल्कुल स्टेप वाइज याद रखना है कि पहले वर्कमैन का क्लासिफिकेशन होगा, उसकी सैलरी, वर्किंग आवर, पे डे सब डिसाइड होगा, शिफ्ट डिसाइड होगा। उसके बाद यहाँ से अटेंडेंस डिसाइड हो जाएगी, है ना, कंडीशन ऑफ लीव डिसाइड हो जाएगा, अगर लीव पे है आप, अटेंडेंस पे लेट कैसे हो रहे हैं वो सब डिसाइड होगा। तो अगर आप एक अपने आप को एक वर्कमैन सोचोगे और सोचोगे कि भाई मैं कंपनी के अंदर जा रहा हूँ, मेरे से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं वो सारे शेड्यूल में कवर होगी, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई मेरी कंपनी तो एलिजिबल हो गई, है ना, मेरी कंपनी एलिजिबल हो गई या नहीं भी हुई है, तो अब मैं, मेरे कंपनी तो ऐसा नहीं विदाउट लॉ चलेगा, है ना। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है या अभी तक प्रोसेस में है, तो उस वक्त मेरे कंपनीज के अंदर क्या लॉस चलेंगे, दैट विल बी द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कंपनी डिसाइड नहीं करती है, इट इज डिसाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, आपने अपनी कंपनी के लिए कोई ऑर्डर नहीं बनाया, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा जब तक कि आप अपनी कंपनी का कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना बना लो। ठीक है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। Until employee's draft is certified, the model standing orders automatically applies. Okay. Power and duties of the authority. Certifying officer क्या करेगा? या तो एक्सेप्ट करेगा ड्राफ्ट को आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, या रिजेक्ट कर देगा। अपीलेट अथॉरिटी क्या है? टू हियर द अपील। पावर की सिमिलर टू दैट ऑफ सिविल कोर्ट। ठीक है, दिस सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी दोनों के पास पावर क्या है? इक्विवेलेंट टू द सिविल कोर्ट। कोई भी एविडेंस ले सकते हैं, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस वगैरह कुछ भी, किसी भी मैटर में कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इनका पावर किसके बराबर होता है? सिविल कोर्ट के बराबर होता है। पेनाल्टीज, अगेन पेनाल्टी के लिए मैं बोलूंगा एक चार्ट बना लो कि पेनाल्टीज, रजिस्टर और द एप्लीकेबिलिटी क्लॉज, पेनाल्टी क्लॉज, ये सारी चीज हर एक्ट के अंदर है और हर एक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक चार्ट बना लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। देखो, फेलियर टू सबमिट द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। फेलियर मतलब आप क्या बताया गया था कि 30 डेज के अंदर जब आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना, जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो उसके सॉरी 6 मंथ के अंदर सबमिट ड्राफ्ट करना है। 6 मंथ के अंदर मतलब 180 डेज लमसम, यानी कि 6 मंथ के अंदर आपने ड्राफ्ट सबमिट नहीं किया, जिस दिन से आपकी फैक्ट्रीज के अंदर 100 वर्कमैन आ गए, तो उसके बाद आपको पेनाल्टी लगेगा। क्या पेनाल्टी लगेगा? 5,000 वन टाइम फीस प्लस 200 फॉर ईच डे कंटिन्यूएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में जब आप जाते हो विदाउट टिकट, तो पहले तो टीटी बोलता है भाई 250 रुपए का तो पेनाल्टी है, प्लस आप कितने किलोमीटर ट्रेवल करोगे उस किलोमीटर के हिसाब से पर 10 या पर 15 आपको टिकट कटानी पड़ेगी। तो सेम केस है यहाँ पर भी कि अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट सबमिट नहीं किया, तो आप पर पेनाल्टी 5,000 का तो सीधा लगेगा, इसके साथ 200 पर डे के हिसाब से, जितना आपका डिले है उसके हिसाब से पेनाल्टी जुड़ेगा। ब्रीच ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करता है लेकिन आप उस चीज को फॉलो, स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा गया है कि अगर आप एक दिन के अंदर 4 घंटे से ज्यादा लेट आते हो, यानी कि आपको 10 बजे ऑफिस आना था, आप 2 बजे ऑफिस आए, तो उस दिन के लिए आपको एब्सेंट माना जाएगा, आपका अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। लेकिन कोई एम्प्लॉय अगर 3 घंटे के
बाद ऑफिस आ जाता है, यानी कि 1 बजे आ जाता है, आपने उसको फुल डे के लिए एब्सेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। और उसके लिए आपको 100 रुपए का फाइन और 25 डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है, पे करना पड़ सकता है। दिस इज द पेनाल्टी अंडर द एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। समरी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनैक्टेड 1946, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड स्टैंडर्डाइज एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, 100 वर्कमैन से ज्यादा होना चाहिए। सर्टिफाइंग ऑफिसर किस लिए, ड्राफ्ट अप्रूव करने के लिए। कोर डॉक्यूमेंट क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है अपीलेट अथॉरिटी है, 30 दिन के अंदर अंदर हम काम कर सकते हैं। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रेस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और मॉडिफाई कब कर सकते हैं, 16 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइन एंड पेनाल्टी हमने देखा है। और इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल पेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी को फॉर्ज करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट जो है दैट इज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो भाई ये वीडियो तो हो रही है काफी लंबी, तो मैं इस वीडियो को यही स्टॉप करूंगा। अगला पार्ट में हम इसका पार्ट 2 पार्ट 3 करके लेके आते हैं। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, पार्ट 2 के अंदर हम आगे के एक्ट्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।